Rahim, Modern Language School, I-10 Campus, Islamabad. Today the date is 28 September 2020. So class 1, we will do a textbook and an activity book today. So firstly pick out your textbooks. Now class, it's page number 69, you can see it. Write a date first, that is 28 September, 2020. Okay, punctuation. Comma after yes and no. Sandra's class has a special guest today. They are asking him questions to guess his occupation. Read and guess the answer. Now, note that the guest's yes or no answers are followed by a comma. Okay, now you can see it. It's a conversation between a guest and a class. So, class, do you have to wear a uniform? Guest, yes I do. And you can see a small comma here. Yes I do. Now class, does your job take you to many places? Yes it does. You can see again it's a comma here. Do you travel on land? Guest, no I don't. No के बाद भी comma. Do you travel by sea? No I don't. ठीक है, it's again comma. Do you travel by air? Yes I do. Class, you are a okay. So you can see this conversation by yes and no, and you can see a comma here, this here, here, here and here. Okay, so they are the commas that are used in conversation that can be used after yes or no. सही है. So ये आप लोगों को समझ आ गया. ये क्लास है, संद्रा की कोई क्लास है, उसके अंदर एक स्पेशल गेस्ट आया है जिससे जो क्लास है वो कन्वर्सेशन कर रही है, उससे क्वेश्चंस कर रही है और वो सिर्फ येस और नो में आंसर्स दे रहा है. तो येस जब कहते हैं तो उसके बाद भी कॉमा लगाते हैं, नो कहता है तब भी कॉमा लगाते हैं. ठीक है, तो येस और नो के बाद जो आंसर्स होते हैं उनके बाद कॉमा लगता है. ओके, सो पिक आउट योर activity books now. Okay, now class, it's page activity book and page number 61. So firstly write a date, that is 28 September 2020. Okay, punctuation. Exercise 4F, comma after yes and no, we have already learned it. So Joy has brought his pet bird to see Dr. Aziz. Joy has brought his pet bird to see Dr. Aziz. Dr. Aziz के पास वो अपना बर्ड जो है वो दिखाने लाई है, अपना जो पेट बर्ड है वो दिखाने लाई है. ठीक है, रीड देयर कन्वर्सेशन एंड राइट द मिसिंग कॉमास इन करेक्ट प्लेसेस. नाउ अब आपने क्या करना है कि आपने कॉमास लगाने. ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि कॉमा जो है वो किस वर्ड के बाद लगेगा, तो वो आपने कॉमास को पुट करना है इसकी कन्वर्सेशन में. सो इज़ द लिटिल बर्ड स्टिल सिक. ये डॉक्टर जो है वो इससे बोल रहे हैं, जोई से बोल रहे हैं. इज़ द लिटिल बर्ड स्टिल सिक? सो ही आंसर्ड नो इट इज़ नॉट. नो कॉमा, पुट अ कॉमा हेयर. ओके, आराम से कॉमा लगाएं, एक फुल स्टॉप बनाया और फिर छोटा सा ये नीचे ले गए. ठीक है, सो नो इट इज़ नॉट. नाउ नेक्स्ट, गुड, I am glad. Are you going to give the bird a name? So he answered, yes, I am. So put a comma here. Yes, I am. Can you help me to think of a nice name? So in first picture you can see a doctor is asking a boy or a Joey that a little bird is still sick. वो कहते हैं कि अभी भी ये बीमार है. वो कहते हैं no it is not, नहीं ये बीमार नहीं है. So in next picture you can see him that he is examine him, मतलब उसे देख रहा है और साथ साथ पूछ रहा है good, I am glad, मैं खुश हूँ. Are you going to give a bird the name? वो कह रहे हैं कि तुम जो है अपने बर्ड को नाम दे रहे हो कोई. ओके, सो वो कहते हैं कि आपने कोई नाम दिया है इसको? तो वो कहता है yes I am, मैंने दिया है. Can you help me to think of a nice name? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं इसका एक नेम सोच लूँ बर्ड का. So in next picture you can see him, doctor, he is telling that yes I think so. Yes,
कॉमा, पुट अ कॉमा हियर अगेन। हाउ अबाउट किपी? वो कहता है येस, मैं सोच सकता हूँ, मैं कहता हूँ शायद कैसा रहेगा किपी, किपी नेम, इज़ इट अ नाइस नेम? वो कहता है क्या ये अच्छा नहीं रहेगा, किपी मतलब बर्ड का नाम किपी रख दें। तो वो बच्चा कहता है येस इट इज़, थैंक यू। तो येस के बाद कॉमा, येस कॉमा इट इज़ थैंक यू। वो कहता है येस, किपी अब नाम उसके बर्ड का हो गया, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 62. Now class, it's page number 62 and you can see it's a comprehension. So reading comprehension, exercise 4G, the bus driver. Okay, the bus driver. Read and enjoy the story. Now we will read it and then fill these statements. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Jefferson has been working as a bus driver for the last 20 years. Today he is starting work very early as usual. Okay, Mr. Jefferson is taking 40 students of Everton Elementary School, underline this word elementary school, to school this morning. Everton, morning, starting, working. Okay, these are the words, underline them, ठीक है। Now he is driving to different homes, different, to pick up the school children. Now children, he is picking up his first passenger at 6 o'clock. Passenger. Okay, in this paragraph the writer is saying that Mr. Jefferson, एक बंदा है Mr. Jefferson उसका नाम है, has been working, काम कर रहा है, as a bus driver, underline the word driver, वो एक बस ड्राइवर के तौर पे एक बंदा है, वो काम कर रहा है, उसका नाम क्या है, मिस्टर जेफरसन। नाउ वो कितने काम से, मतलब कितने ईयर्स से काम कर रहा है, वो 20 ईयर्स से काम कर रहा है, 20 सालों से, अंडरलाइन दिस वर्ड अगेन 20। सो ही वॉज वर्किंग फॉर द 20 ईयर्स, फॉर लास्ट 20 ईयर्स, मतलब वो पिछले 20 ईयर्स से काम कर रहा है, 20 साल से। टुडे, आज के दिन, ही इज़ स्टार्टिंग वर्क वेरी अर्ली एज़ यूजल, उसने क्या किया, आज के दिन भी उसने अपना काम सबसे पहले से शुरू कर दिया है, मतलब बहुत जल्दी सुबह से उसने काम करना शुरू कर दिया, हमेशा की तरह, जैसे वो हमेशा करता है। मिस्टर जेफरसन इज़ टेकिंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ एवर्टन एलिमेंट्री स्कूल। ओके, अब क्या होता है, मिस्टर जेफरसन जो है वो कितने स्टूडेंट्स लेते हैं, 40 स्टूडेंट्स लेते हैं, अंडरलाइन द वर्ड स्टूडेंट्स। किस स्कूल के लेते हैं, एवर्टन एलिमेंट्री स्कूल है, उससे जो है वो उसके बच्चे लेते हैं, मतलब एवर्टन एलिमेंट्री स्कूल के लिए जो बच्चे लेते हैं वो 40 स्टूडेंट्स लेते हैं। जैसे आप लोग MLS के हैं ना, तो जो जेफरसन लेते हैं वो कहाँ, कौन से स्कूल के लिए लेते हैं, एवर्टन एलिमेंट्री स्कूल के लिए। टू स्कूल दिस मॉर्निंग। अच्छा, अब उनको छोड़ने के लिए क्या करते हैं जी, मतलब उन्हें पढ़ाई के लिए छोड़ने के लिए वो कितने स्टूडेंट्स लेते हैं, 40 स्टूडेंट्स लेते हैं। ओके, ही इज़ ड्राइविंग टू डिफरेंट होम्स टू पिक अप द स्कूल चिल्ड्रेन। नाउ अब वो क्या करते हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं ताकि वो जो है, ड्राइविंग को अंडरलाइन कर लें, वो ड्राइविंग कर रहे हैं ताकि जो है वो बच्चों को डिफरेंट स्कूल्स, मतलब स्कूल के जो डिफरेंट बच्चे हैं उनको उनके घरों से पिकअप कर लें, उठा लें, मतलब ले लें। ही इज़ पिकिंग अप हिज फर्स्ट पैसेंजर एट 6 o'clock। अब वो अपना जो पहला मुसाफिर लेते हैं, अंडरलाइन द वर्ड पिकिंग, वो अपना जो पहला मुसाफिर लेते हैं, अपने जो पहला मतलब बच्चा जो लेते हैं स्कूल के लिए पिक करते हैं, वो कितने बजे करते हैं, 6 o'clock, ठीक है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, मिस्टर जेफरसन इज़ गुड एट गेटिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल सेफली, अंडरलाइन द वर्ड सेफली। ही इज़ गुड एट मेकिंग श्योर द चिल्ड्रन आर ऑन टाइम। All the children like Mr. Jefferson because he is friendly and cheerful. Underline this word, cheerful and friendly. He greets the children with a smile when they board his bus. Board. In the afternoon, he drives the children back home. Okay, now in this paragraph they are saying that Mr. Jefferson is good at getting the children to school safely. वो जेफरसन जो है, मिस्टर जेफरसन, वो बच्चों को सेफली स्कूल पहुंचा देते हैं, आराम से, सेफली, किसी नुकसान के बगैर पहुंचा देते हैं स्कूल। उसके बाद क्या होता है, ही इज़ गुड एट मेकिंग श्योर द चिल्ड्रन आर ऑन टाइम, और वो इस बात की भी श्योरिटी लेते हैं कि बच्चे जो है वो टाइम पे स्कूल पहुँचे, ठीक है, अच्छी बात है ना ये तो।
आप लोग भी स्कूल जो है वो टाइम पे पहुंचते हैं, तो इसलिए मिस्टर जेफरसन जो है वो भी बच्चों को स्कूल जो है वो टाइम पे पहुंचा देते हैं। ऑल द चिल्ड्रन लाइक मिस्टर जेफरसन, सारे बच्चे जो है मिस्टर जेफरसन को बहुत पसंद करते हैं। अब क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज ही इज़ फ्रेंडली एंड चेयरफुल, वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, खुशगवार उनका मतलब मिजाज होता है, मतलब वो बहुत खुश रहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंड टाइप रहते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं। ही ग्रीट्स द चिल्ड्रन, ग्रीट्स को अंडरलाइन करें, ही ग्रीट्स द चिल्ड्रन विद द स्माइल, वो वेलकम करते हैं अपनी मतलब वैन में, जब वेलकम करते हैं वो बस में जब बच्चे एंटर होते हैं, व्हेन दे बोर्ड हिज बस। अच्छा, अब क्या होता है कि बच्चे जो है वो उनको मतलब मिस्टर जेफरसन जो है वो बच्चों की तरफ स्माइल करके देखते हैं जब वो बच्चे एंटर हो रहे होते हैं उनकी बस में। इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, ही ड्राइव्स द चिल्ड्रन बैक होम, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को आराम से घर छोड़ देते हैं। ठीक है, ड्राइव्स को भी अंडरलाइन करते हैं। नाउ लास्ट पैराग्राफ, मिस्टर जेफरसन इज़ अ गुड ड्राइवर, ही इज़ वेरी केयरफुल ऑन द रोड एंड ही डज नॉट स्पीड, nobody knows the neighborhood, underline this word neighborhood, better than Mr. Jefferson. Mr. Jefferson says that he likes his job because he enjoys being around children. Okay, now explaining this paragraph or third paragraph, that is Mr. Jefferson is a good driver. Mr. Jefferson जो है वो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। ही इज़ वेरी केयरफुल ऑन द रोड, अंडरलाइन दिस वर्ड केयरफुल, वो जो है वो रोड पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, बहुत एहतियात से चलाते हैं मतलब गाड़ी अपनी। एंड ही डज़ नॉट स्पीड, और वो स्पीड नहीं लगाते, मतलब वो फास्ट स्पीड नहीं मतलब फास्ट स्पीड से नहीं चलाते। नोबडी नोज़ द नेबरहुड बेटर देन मिस्टर जेफरसन। मिस्टर जेफरसन से ज़्यादा कोई अच्छा नेबर नहीं हो सकता, मतलब कोई अच्छा पड़ोसी नहीं हो सकता मिस्टर जेफरसन से ज़्यादा अच्छा। मिस्टर जेफरसन सेज़ दैट ही लाइक्स हिज जॉब, वो अपना जो है जॉब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज क्योंकि ही इन्जॉयज़ बीइंग अराउंड चिल्ड्रन, उन्हें पसंद है वो बच्चों के आसपास रहें। ठीक है, ओके, नाउ एक्सप्लेन हो गई आपके सामने स्टोरी। नाउ वी विल डू these statements. It's page number 63. So number 1 is Mr. write a tick next to the statements that are false. Okay, अच्छा जी, आपने क्या करना है जी, टिक लगाना है जी, जो सही स्टेटमेंट्स हैं और जो गलत है उनके ऊपर क्रॉस लगा देना है। ठीक है, मिस्टर जेफरसन पेंट्स buses, no, it's false, so pick a cross here. The children in Mr. Jefferson's bus attend Everton Elementary School. Yes, so tick it. The children start school at 6 o'clock. No, false. Mr. Jefferson picks the children up from the school in the morning and sends them home in the afternoon. Yes, tick it. Mr. Jefferson has 12 passengers on his bus. No, there are how many students? There are 40 students. False. Mr. Jefferson enjoys being around the children. Yes, true. Mr. Jefferson picks up the first passenger in the afternoon. No, false. Mr. Jefferson is not familiar with the neighborhood. No, false. The children think well of Mr. Jefferson. Yes, it's true. Tick. Last is Mr. Jefferson is a friendly person. Yes, it's tick again. Okay.